बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं इनको मदरसे से मिलते हैं पैसे कि हिंदू लड़की को फंसाओ तुम, हर महीने हम तुम्हें 50,000 प्लस बाइक देंगे और बाइक में तेल भरवाने के भी पैसे हम देंगे। और मैं जहिरुल इस्लाम माद्रासार পৰা हिंदू যুৱতীসকলক কেনেকৈ প্ৰেমৰ জালত ফসাব পাৰি তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় মুছলমান যুৱকসকলক। মাদ্ৰাসাৰ পৰা বাইক গাড়ী কিনি দিয়া হয় প্ৰতিগৰাকী মুছলমান যুৱকক। মাদ্ৰাসাৰ পৰা দিয়া হয় 6 পৰা 7 লাখ টকা প্ৰতিগৰাকী মুছলমান যুৱকক। আনকি যিটো জনগোষ্ঠী বা জাতিৰ হিন্দু যুৱতীক পতাব বা প্ৰেমৰ জালত আবদ্ধ কৰিব সেই জাতি অনুসৰি দিয়া হয় অধিককৈ বেছি টকা। আৰু এই টকাবোৰ ফাইনেন্স কৰি আছে সৌদি আৰবে। এই সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰিলে গুজৰাটৰ এগৰাকী উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী সাম্প্ৰদায়িক যুৱতীয়ে। এই যুৱতীগৰাকী গুজৰাটৰ পৰা এনেকৈ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত বৃদ্ধিৰ কাৰণে এক ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিছে আৰু যি ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ' বৰ্তমান অসমৰ একাংশ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী সাম্প্ৰদায়িক হিংসাখোৰ ব্যক্তিৰ মনৰ খোৰাক যোগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ মনৰ খোৰাক যোগোৱাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। মাদ্ৰাসাৰ পৰা মাদ্ৰাসাৰ মৌলানা মুফতি কাৰী আনকি মুন্সি এইসকলেই মুছলমান যুৱকসকলক তেওঁলোকক পইচা ট্ৰেইনিং গাড়ী সকলো বেয়াৰ কৰে। এই ধৰণেই মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী উঠি অহা যুৱতীয়ে। যি যুৱতীগৰাকী হয়তো অনাগত দিনত সমাজখনক নেতৃত্ব দিব পৰা ক্ষমতাও কিজানি অৰ্জন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতী আৰু সেই যুৱতীয়ে সাম্প্ৰদায়িক বিষবস্ত্ৰ বিয়পাবলৈ কেনেকৈ নামিছে। এই যুৱতীগৰাকী দিয়া লেকচাৰখিনি যদি আপোনালোকে নুশুনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আন্দাজো কৰিব নোৱাৰিব। একাংশ মুছলমান বিদ্বেষী লোকে এনেকুৱা উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰি আছে যে হিন্দু আৰু মুছলমান যেন চিৰকালৰ শত্ৰু। তেওঁলোকৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা যায় তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিনে নিশাই দি এনেকুৱা উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰি তেওঁলোকৰ মগজ ধুলাই কৰি তেওঁলোকৰ মগজত কেৱল সাম্প্ৰদায়িকতা বা তেওঁলোকৰ মগজত কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাতৰ চিন্তাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি থকা তো এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যিটো অত্যাধিক দুখজনক এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ মাজত। কাৰণ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, যি দেশত প্ৰতিটো দায় ধৰ্মৰ লোকে সমিল মিলে আগুৱাই যাব পাৰে। ভাৰত এনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰ যি ৰাষ্ট্ৰত সকলো দায় ধৰ্মৰ লোকক সমানে অধিকাৰ দিয়া হ'লেও মুছলমানৰ জনসংখ্যা অত্যাধিক কম হোৱা বাবেই তেওঁলোকৰ ওপৰত বাৰে বিভিন্ন বিষয়ত তীৰ চলাই কেৱল ক্ষমতাৰ ৰাগত একাংশই হিন্দু মুছলমানৰ নামত যে বিভাজন সৃষ্টি কৰি দেশখন ৰখাতললৈ লৈ গৈ আছে সেয়া কিন্তু হয়তো এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়ালৈকে বুজি উঠিব পৰা নাই। যিটো সময়ত হয়তো বুজি উঠিব সেইটো সময়ত হয়তো এওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব মূৰৰ কামৰণি। কাৰণ দেশখনৰ পৰা যিমানেই যি নকক, হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত যিমানেই সৃষ্টি কৰিব নিবিচাৰক, এতিয়ালৈকে যিমানখিনি মুছলমান জনসংখ্যা আছে তেওঁলোকক এই দেশৰ পৰা কেতিয়াও কোনোবাই মাৰি কাটি শেষ কৰিব পৰা ক্ষমতা কিন্তু নাই। গতিকে হিন্দু মুছলমান পূৰ্বৰ দৰেই সমিল মিলে থকাটোই হৈছে শ্ৰেয়। সমাজখন আগুৱাই ল'বলৈ হ'লে হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদ অনাটো এক প্ৰকাৰ যে দখনীয়, তাৰ কাৰণে যে আইন ন্যায়পালিকা কঠোৰ হ'ব লাগিব সেয়া কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই। সৌদি আৰবে ভাৰতৰ মুছলমানসকলক নেতৃত্ব দিয়া বুলি এইগৰাকী যুৱতীয়ে দাবী কৰিছে যে সৌদি আৰবৰ পৰা টকা দিয়া হয় ভাৰতীয় মাদ্ৰাছাই আৰু মাদ্ৰাছাৰ মুফতি মৌলানা কাৰীসকলে সেই টকা মুছলমান যুৱক আৰু যুৱতীসকলক দিয়ে হিন্দু যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰেমৰ জালত আবদ্ধ কৰি তেওঁলোকৰ ধৰ্ম চেঞ্জ কৰিবলৈ।
এনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তিৰে উঠি অহা যুৱচাম সৰু সৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ যে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে তাৰ পৰাই কিন্তু স্পষ্ট হয়। আমি জানো যে প্ৰায় 3 কোটিতকৈ অধিক কিছু লোক আছে চৌদি আৰবত, যি হাতে গণা মানে মাত্ৰ আমাৰ অসম নামৰ ৰাজ্যখনত যিমানসমূহ জনসংখ্যা আছে, চৌদি আৰব ৰাষ্ট্ৰখনতে সিমান সংখ্যক জনসংখ্যা নাই। আৰু ইমান বৃহৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন, আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 135 কোটিতকৈ অধিক জনতা আছে। সেইখন দেশৰ প্ৰতি সেইখন দেশৰ জনগণক এনেকৈ নেতৃত্ব দি আছে মাত্ৰ 3 কোটিৰ দেশ চৌদি আৰবে। এনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তিৰে উঠি অহা সহজ সৰল অবুজ যুৱক যুৱতীসকল বা সাধাৰণ জনতাক যে বিপথে পৰিচালিত কৰি এওঁলোকৰ দৰে ভণ্ড একোটা ব্যক্তিয়ে যে সমাজখন ৰখাতললৈ লৈ গৈ আছে, সেয়া কিন্তু সাধাৰণ উঠি অহা বুদ্ধিজীৱী যুৱক যুৱতীসকল, আনকি যিসমূহ আমাৰ সমাজৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবীণ লোক আছে, তেওঁলোকে কিন্তু বুজিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতি কাৰৰ বাবে প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক স্তব্ধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব। আনকি চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত যদি ব্যৱস্থা হাতত নলয়, কিন্তু এটা সময়ত হয়তো ভাৰত ৰক্তাক্ত হৈ পৰিব। আৰু সেইটো সময়ত যিমানেই কষ্ট নহওক, কোন মৰিব কোন বাচিব সেয়া কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয় নহ'ব। কেৱল ৰক্ত বা তেজৰ হোলী খেলা হ'ব, আৰু সেই তেজ হিন্দু বা মুছলমান বুলি কথা নহয়, এজন ভাৰতীয়ই আন এজন ভাৰতীয়ৰ গাৰ পৰা বা দেহৰ পৰা সৰকাই দিয়া হ'ব। গতিকে চাওক, এইগৰাকী যুৱতীয়ে কেনেকৈ কি ধৰণে বিষাক্ত সাপৰ দৰে বিষ এৰি আছে সমাজত সেই কথাবোৰ। लेकिन मैं उन लड़कियों को कहती हूँ, स्ट्रांग बन जाओ, अपनी धर्म अपनी संस्कृति को बचाओ। ये जिहादी किस तरह से काम करते हैं, ये आपसे प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये लुक्खे होते हैं। ये पंचर छाप झोपड़बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, इनको मदरसे से मिलते हैं पैसे कि हिंदू लड़की को फंसाओ तुम, हर महीने हम तुम्हें 50,000 प्लस बाइक देंगे और बाइक में तेल भरवाने के भी पैसे हम देंगे। तब ये लड़का हीरो बन के बाइक लेके आपके आगे पीछे मंडराता है। फिर आप जैसे ही 18 की हो गई, आपको उठा के भगा के लेके जाएगा। शादी करने पर इनका मदरसे से इनके जो मौलवी होते हैं, इनके मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, वो इनको देते हैं पैसा कि ब्राह्मण की लड़की है 5-6 लाख रुपए, पंजाबी की लड़की है तो 6-7 लाख रुपए, जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए, राजपूत की लड़की है तो 6 लाख रुपए, ऐसे करके आप लोगों के प्राइस लगाए हुए इन्होंने जाति के हिसाब से। और एक बार शादी हो गई, इनको सीधे 8-10 लाख रुपए मिल जाते हैं। बच्चा पैदा करवा के ये आपको छोड़ देते। अब इनमें तो 4 रखना जायज है, अब क्या कर लेगी? ये तो भला हो मोदी जी का कि ट्रिपल तलाक हटा दिया है, वरना तो ट्रिपल तलाक देकर ही आपको छोड़ देते। आपकी सिक्योरिटी क्या है? फिर क्या करते हैं ये लोग? आप लोगों की बद से बदतर हालत करते हैं। माँ बाप आपको स्वीकारते नहीं है, समाज के पास आप रही नहीं, बच्चा लेके जाएगी कहाँ? तो इन जिहादियों के यहाँ फंस जाती है। और एंड में या तो आपको काट के किसी सूटकेस में मिलोगी, या आपको जला दिया जाएगा, या आपको कहीं भी मार दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको जागरूक करना ही हूं। देखो, प्यार है तो वो प्यार रहना चाहिए। प्यार में अगर आपका धर्म बदला जा रहा है, आपको आपकी आइडेंटिटी बदली जा रही है, आपको सीता से सुल्ताना बनाया जा रहा है, तो बहन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वो प्यार नहीं है। आप ये फिल्मों के शाहरुख खान और आमिर खान की लाइफ स्टोरी को रियल मत समझिए। ये तो सब प्लान्ड है। हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने के लिए इनको पैसा सऊदी से आया है, आप समझे, ताकि ये बॉलीवुड के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश करो, लड़कियों को रखे कि हाँ मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब्दुल ऐसा ही है। अब्दुल बहुत क्लियर है। अब्दुल क्या करता है? 27-28 साल का अब्दुल जो है वो 17-18 साल की हिंदू लड़की को, गीता को फंसाएगा, फिर उसको ट्रैप में लेगा, फिर उसको परेशान करेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, और ऐसे करके कहीं से भी पैसा ऐठेगा। आपको पता है, एक तो मैंने ऐसा किस्सा अभी रेस्क्यू करा है कि उस मुस्लिम लड़के से डिवोर्स लेने के लिए वो मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की से, उसके परिवार वालों से पैसा मांग रहा है कि इसको इसी तरह से परेशान करूंगा, या तो आप मुझे 20 लाख रुपए दो। 20 लाख रुपए देकर माँ बाप ने उस मुस्लिम लड़के से
पीछा छुड़ाया है। और हमारे हिंदू लॉ कैसे है, 50% प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी में से 50% का हिस्सा देना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती है पर डिवोर्स नहीं होते हैं लड़कों के, हिंदू लड़कों के। और यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से ट्रैप में लेते हैं। अभी मैंने एक 17 साल की लड़की को रेस्क्यू किया, हमारे गुजरात की 17 साल की लड़की के साथ 38 इयर्स का लड़का क्या हो तो मतलब बाप की उम्र का हुआ, उसने उस लड़की को फंसाया। वो लड़की जो थी वो SC/ST कम्युनिटी से थी, उसने इस लड़की को फंसाया, उसको भगा के ले गया। आप सोचो माइनर लड़की को, उस पर पॉस्को भी लगवाई, बलात्कार का भी वो सारा करवाया और मैंने उसको अरेस्ट करवाया उस लड़के को। आज की तारीख में वो जेल में है। तो आप लड़कियों को डरना नहीं है इन लड़कों से, दमखम के साथ बोलो। कोई लड़का आकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रही है क्या? हमारे में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, हमारी तो एक एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। आप चाहे दुर्गा माँ को ले लो, आप काली माता को ले लो, हमारी हर एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप देखो, जीजाबाई को आप देखो, इन सारी महिलाओं ने जिस तरह से हमारी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करी है। प्यार में इतना अंधा हो जाना कि अपना अच्छा भला बुरा हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चों को कल्चर ही नहीं देते। माँ अपने में मस्त है, बाप अपने में मस्त है और बच्चे कहाँ जा रहे कुछ पता ही नहीं। या माँ बाप के घर में झगड़े चलते होंगे, बच्चा डिस्टर्ब होता होगा, बाहर कोई अब्दुल मिल गया, दो प्यार भरी बातें कर ली, बेटी बच्ची फिसल गई और अब्दुल के पीछे चल गई। और ये अब्दुल जो है उसको तो पैसों से मतलब है। इन पंचर छाप मदरसा छापों के पास होता क्या है? तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से पूरा अपना एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं। फैमिली मैन 2 में बहुत सही बताया गया है कि एक 15 साल की टीनेजर लड़की को वो जो पंचर छाप सलमान है आतंकवादी, वो कल्याण बन के फंसा रहा है। और वो लड़की पुलिस वाले की बेटी है, एक रॉ एजेंट की, IB एजेंट की, ब्यूरोक्रेट में है उसके फादर, जो ये फिल्म में बताया गया है। और वो बिल्कुल सही बताया गया है। तो आप, मेरा और आपका काम है कि हम हमारी लड़कियों को बचाएं। और जो भी लड़कियां मुझे देख रही है, आपको कोई भी लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो वो लड़का, और आपको परेशान कर रहा है, आपके कोई फोटोग्राफ्स ऐसे है उसके पास में, और वो फोटोग्राफ की आड़ में या वीडियो की आड़ में आपको परेशान कर रहा है और आप किसी को बोल नहीं पा रही हो, आप ऑफिशियल काजल शिंगाला को इनबॉक्स करें। और मैं वचन देती हूँ आपकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी। और उस लड़के को उसके जन्म पर, पैदा होने पर उसको अफसोस होगा ना, वैसी हालत कर दूंगी उस लड़के की, मैं वचन देती हूँ। तो मैं आज यही बात करने आई थी और हमारी लड़कियों को बहुत समझना है। दूसरा, एक इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिए, क्योंकि ये जो देश की तथाकथित 30% माइनॉरिटी है वो इंस्टाग्राम पे मेजोरिटी में है। और ये मेजोरिटी में अपना वो चलाते हैं, इनकी गालियां वालियों से और इनकी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता है। बट आप देखो कि इतनी मेजोरिटी में है कि हमारी लड़कियों की ब्रेन वॉश करते हैं, हमारी लड़कियों को फंसाते हैं। इस वजह से आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में इनको जवाब दीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए।